رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے زور و شور سے جا رہی ہے۔ 2 کروڑ لوگوں کے پونے 2 کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا، اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا ٹرپل گیا، لیکن پونے 2 کروڑ، جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا۔ پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی اور ان کو عارضی چھت اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے۔ پھر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 54 شہداء دیے اور سینکڑوں مضروب دیے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر اتنی مشکل سخت قید و بند کی صحبتیں تک کاٹی، پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ کالعدم ہونے تک گئی۔ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے۔ پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا، پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا۔ اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ملی، گھی سستا ملا، آٹا سستا ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فہرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج۔ اس کے بعد آپ آ جائیں فلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر، تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا، جس کو چشم فلک نے دیکھا اور فلسطینی رہنماؤں نے، حریت رہنماؤں نے، حماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فورمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہیوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا، اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے خطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے۔ وہ جلسے ہوں، کارنر میٹنگز ہوں، وہ ہماری سیاسی کمپین ہو، ہمارے پارٹی پرچم کے ساتھ، پاکستان پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا 5 سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے، اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں۔ یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم کی۔ جی السلام علیکم، نواز بھٹی سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نظام ادب پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت ایک چیف جسٹس مجرم قرار دیتی ہے، تاحیات قرار دیتی ہے، اور سیکنڈ وہی اسی شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے، بلکہ اسی کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اسی کے لیے الیکشن اور سلیکشن ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن تو کہیں اور ہوں گے، سلیکشن کہیں اور ہوگی، تو آپ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کریں گے یا کہ یہ الیکشن بھی اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے بھی ہمارا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو یہ الیکشن اور سلیکشن میں کیا فرق ہے سر، ذرا یہ بتائیے۔ الیکشن اور سلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پچھلے 2018 میں سلیکشن کی گئی، وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے، یہی ساری صورتحال ہے۔ اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کیریئر کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رلایا جا رہا ہوں۔ یہ سارا سیاسی سفر ہے، اس کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو، بلکہ کورٹس کو اور جو نام نہاد عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ایئرپورٹ پر اس کے انگوٹھے لگوا کر اس کو بری کیا جا رہا ہے، تو چیزیں تو یہی وضاحت کرتی ہیں، لیکن چیزیں اور حالات کسی بھی شخص کے ساتھ اور طاقت کسی بھی شخص کے ساتھ اور یزید کی ساری فوج کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑی ہو جائے، حسینیوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنا علم اور اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک آواز بلند کرتے رہیں۔ اس لیے ہم الیکشن کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، ہم ہار جیت سے مبرہ ہو کر کھڑے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیا گیا تو انشاءاللہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے۔ السلام علیکم، احمد فہیم، میرے 2 کویسچنز ہیں۔ ایک تو فلسطین کے حوالے سے حل کیا ہے؟ پوری دنیا میں ریلیز نکلیں لیکن اس کا حل کچھ نہیں نکلا۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ریلیز ابھی نکل رہی ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔
दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इंतखाबात में किससे एक सवाल का जवाब ले। आपने कहा कि फ़लस्तीन का हल क्या है। फ़लस्तीन का हल इसी तरह है जिस तरह इसराइल के साथ रियासतें खड़ी हुई हैं, रियासत अमेरिका खड़ी हुई है, रियासत बरतानिया खड़ी हुई है। दुनिया की तमाम वो रियासतें जो ताकत रखती हैं वो इसराइल के साथ खड़ी हैं, असलहा के तौर पर, माली मुआवनत के तौर पर, सफारती तौर पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर। फिर उनके रहनुमा जाकर इसराइल में दुख का इजहार, उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। फ़लस्तीन का मसले का हल भी यही है कि एक तरफ बातिल है और एक तरफ हक है। हम ये जानते हुए कि फ़लस्तीन हक पर है और जो अपने आप को हक की रियासतें कहती हैं, वो मुसलमान रियासतें हैं, वो सारी जो ये ताकत रखती हैं, उनको उसी तरह जिस तरह इसराइल के साथ बाकी तमाम ताकत रखने वाली रियासतें खड़ी हैं, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो जाए तो फ़लस्तीन का मसला टेबल पर बैठकर हल हो जाएगा। अगर कम अज़ कम कत्ल व गारत रुक कर ये मसला टेबल के ऊपर आ जाएगा, ये तय है। अगर हम ये कहें कि हमारी अखलाकी और सफारती ये हमारी हिमायत जारी रहेगी और ये हिमायत जारी रहेगी, तो इस वक्त अखलाक में भी फ़लस्तीनी सबसे बुलंद हैं, सफारतकारी में भी वो सबसे बुलंद हैं, जो अपना खून भी दे रहे हैं, अपने बच्चे भी दे रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें दे रहे हैं और उस अर्ज़ मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान तक कटवा रहे हैं। तो वो अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से वो आगे हैं। पाकिस्तानी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने भी ममालिक हैं जो ताकत रखते हैं, उनको उसी तरह खड़े हो जाना चाहिए इस फ़लस्तीन के साथ जिस तरह अमेरिका और बाकी तागूती ताकतें इसराइल के साथ खड़ी। ये हाल है। आखिरी सवाल, इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप किसी के साथ? इंतखाबी इत्तेहाद हम हर उस जमात के साथ या हर उस धड़े के साथ करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे इन मंशूर और हमारे नज़रियात की बुनियाद पर हमारी हिमायत करने और हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। ये इलेक्शन है, नहीं ऐसे नहीं करें। आगे साहब ये बताइएगा, बता दें कि इलेक्शन है कि इलेक्शन है। ये बताइएगा कि कराची में आपका इंतखाब जो है एक ज़मीनी हुआ जिसमें आपके कैंडिडेट ने टक्कर का मुकाबला लिया और चंद वोटों से उसको शिकस्त दी, लेकिन वहाँ पे जो मसाइल दिखाई दिए कि उस पोलिंग स्टेशन वाले रोज़ लड़ाइयाँ बहुत हुई। क्या आप समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है जिसमें आपकी जमात एक वोट बैंक के साथ जो है वो फ्री थी ज़िमनी इलेक्शन में भी, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो लड़ाई झगड़े का पहलू है उस पर आपने कोई प्लानिंग की है कि उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपकी जमात से थोड़ा जो है वो सख्त रवैया अपनाया जाता है। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नज़र नहीं आ रही, दीगर सियासी जमातें इसका जो है वो किला करती दिखाई देती है। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? देखें, आपने कराची के इलेक्शन की बात की, तो कराची के इलेक्शन में जो हमारे मद्दे मुकाबिल जमात थी हमारी, उनसे तो लड़ाई हुई नहीं। वो जमात जिसका हमारे साथ मुकाबला नहीं था वो बिल्कुल तीसरे चौथे नंबर पर थी। उस जमात को हमारे सामने खड़ा किया गया और उन्होंने एक शोर गुल का भरपूर बात किया, तो हमने उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ 64 वोटों से 65 वोटों से हरा दिया गया और फिर जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर जब हम ट्रिब्यूनल में गए वहाँ केस को, तो उसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जुल्म सहते आए हैं, लेकिन वो ये था कि हमने हालात को काबू में रखना था और कहीं ये ना कहा जाता कि ये देखें एक सीट के लिए ऐसे कर लें। लेकिन अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी हक पर और इसके जनाब वोट के ऊपर डाका मारा जाएगा, तो फिर तो आवाम इश्तिहाल में आएगी और फिर तो लोग इश्तिहाल में आएंगे और उसका नतीजा फिर कोई भी निकल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ें, हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है उसको उतना ज़रूर दिया जाए और उसको बजाने पे हक रखा जाए। साथ ही जो TLP का जो तर्ज हुक्मरानी होगा वो कैसा होगा? तालिबान जैसा होगा या सऊदी बादशाह जैसा होगा? TLP का तर्ज हुक्मरानी इस्लाम जैसा होगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी के साथ भी या देवबंद जो मकतब फिक्र से लोग हैं उनसे भी इंतखाबी इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट के इम्कान हैं? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। जब किसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वो आप सरेआम होगा। ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर और होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब, आपका सवाल। ये कहा, आपने कहा कि एक बंदा लंदन से आया, ठीक है ना, उसका अंगूठे लगवाएंगे, तो आप सबको जो उनके मुकाबले में आ रहे हैं तो उनके तो कागजात भी मुस्तरद किए जा रहे हैं और उनके इलेक्शन में उनको रोका जा रहा है, तो आप तो और दीन की तबलीग के लिए आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है, या आपको भी आने दिया जाएगा? जितना कराची में आपके साथ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी बात नहीं सुनी,
आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ही होगा या सिलेक्शन होगा या मार्शाल्लाह को देख रहे हैं आप? देखें, ज़ोर बाजू आज़माश को न कर सयाद से, कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नज़रियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर ज़हीम नगारी को ख़त्म हूँ आपसे। सर, जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिन पे काफ़ी FIR होती हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल हो जाता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माओ बहनों और चादर चादवारियों का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों का जिनके ऊपर FIRs हैं। देखें, FIRs तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा है वो साद हुसैन रिजवी है, और इससे पहले जिस पर सबसे ज़्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू, जिनके ऊपर 1400 से ज़ायद FIRs हैं, और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली, और आज भी हम पर है। देखें, ये इल्ज़ाम है, और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो हम पर जो FIRs मौजूद हैं, और हमारी ये शूरा के जितने अरकान खड़े हुए हैं, ये FIR से मतलब हमारे नामा अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, हम पर FIR पाकिस्तान काटने पर, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है, हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIRs हैं, और इस पर हमें फ़ख्र है, इस पर हमें फ़ख्र है, और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई हैं। दूसरी बात आपने की, जिस तरह माओ बहनों और चादर चादवारियों के तकद्दुस पमाल किए जा रहे हैं, उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे, और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होती है, दी जलिया दी होती है। वो उमर डार साहब की वालदा हों, वो सनम जावेद साहिबा हों, कोई भी हों, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं हैं। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीज़ें, और ये सियासत मर्दों का मैदान है, और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं, उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो वो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा हैं, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून के मुकाबले में जी। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। सर, ये इलेक्टिवल, सर आपने नया मंशा